غزہ معاہدہ نہ مانا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ معاہدے کے لیے اتوار تک کا وقت دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس آخری موقع ہے، وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ میرے ایک اشارے پر حماس ارکان کی زندگیاں ختم کر دی جائیں گی، وہ جہاں بھی ہوئے تعاقب کر کے مار دیے جائیں گے۔ معاہدے پر تمام ممالک دستخط کر چکے۔ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ معصوم فلسطینی غزہ کے محفوظ حصوں کی طرف چلے جائیں۔ ہماری 8 فارن منسٹرز کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا۔ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ ٹرمپ کا غزہ پلان ہمارا نہیں، اس میں تبدیلی کی گئی۔ پاکستان کا موقف سامنے آ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا، 2 ریاستی حل ہی ہماری پالیسی ہے۔ ٹرمپ کے انعقاد پر ٹویٹ کے وقت وزیر اعظم سفر میں تھے۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کئی اسلامی ملک معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مشرق کا نیٹو اتحاد بننے جا رہا ہے۔ جلد پاکستان اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ جو سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اگر اتنے ممالک مل جائے تو یہ تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ تو وہ وقت آئے گا، میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 63 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ کے شہریوں کو جنوبی غزہ منتقل ہونے کے لیے آخری وارننگ۔ کہا، غزہ میں ٹھہرنے والے فلسطینیوں کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کا حامی تصور کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے دوران غزہ سے 4 لاکھ فلسطینی اپنا گھر چھوڑ کے جا چکے۔ اسرائیل نے سمود فلوٹیلا کی تمام کشتیاں پکڑ لیں، لیکن حوصلوں کو لگام نہ ڈال سکا۔ 11 کشتیوں پر مبنی ایک اور فلوٹیلا جبر کے پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑا۔ کریٹ ساحل کے قریب رواں دواں اس فلوٹیلا میں 100 سے زائد افراد موجود ہیں، جن میں صحافی، ڈاکٹرز اور سماجی کارکن شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سمود فلوٹیلا کی کشتیاں اشدود کی بندرگاہ پر پہنچا دی۔ کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ گرفتار افراد میں سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن مینڈیلا کے پوتے بھی شامل ہیں۔ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے۔ باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، تو ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ ہم ان کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں۔ آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگے گی، معافی آپ کے ترجمان مانگے۔ مریم نواز کا پیپلز پارٹی کو 2 ٹوک جواب، کہتی ہیں مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا۔ پنجاب پر بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب کو اپنے پیسوں سے نہریں نکالنے کی اجازت نہیں دی، لوگوں کو سڑکوں پر نکالا گیا۔ کیا یہ صوبائیت نہیں؟ دوسرے صوبوں میں مصیبت آئے تو پنجاب ساتھ کھڑا تھا، پنجاب میں سیلاب آیا تو زخموں پر نمک چھڑکا گیا، پریس کانفرنسز کر کے جھوٹ بولا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اس کے اوپر ساری چیز کا ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی ڈفرنس نہیں آیا جی۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے۔ سو ہم آج واک آؤٹ کر رہے ہیں،
the entire party. मरियम नवाज के बयानात जियाले नाराज, लीगी अरकान परेशान। पीपल्स पार्टी का आज फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर बोले, एहतजाज के बावजूद हालात बदस्तूर जूं के तू है, मामला हल होने तक बाइकआउट जारी रखेंगे। राना तनवीर हुसैन और आजम नज़ीर तारड़ ने जियाले अरकान का गुस्सा ठंडा किया। पीपल्स पार्टी अरकान बाइकआउट खत्म करके वापस आ गए। इसाक डार की भी मिल बैठ कर मामलात हल करने की यकीन दहानी। कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। इनको कहता सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। यार शमा को बात, आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जो डेलीगेशन जाता है यूएनजी में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है, और वो लेटर ऑफ क्रेडेंस जो है वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के नाम लिखा जाता है। वो लेटर मैंने साइन किया है, वो मौजूद है रिकॉर्ड के लिए। आपने देखना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। कौमी असम्बली इजलास में शमा जुनेजो की गूंज। इसाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शमा जुनेजो के मामले पर बार बार सवाल। नायब वज़ीर आज़म का तंजिया जवाब। कहा, बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल को लिखे खत में खातून का नाम शामिल नहीं था। शमा जुनेजो का नाम दफ्तर खारजा की फहरिस्त में शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया। मुजफ्फराबाद में हुकूमती वफ्द और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात मंजूर किए जा चुके। उम्मीद है तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस हो के, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए। जी देखिए, ये एक लीगल क्वेश्चन है, और लीगल के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा ये एक आइनी सवाल है। और हमें जब सियासत की बात होती है तो जो कानूनी और आइनी नुकात हैं ना, उन्हें बड़े ठंडे दिल के साथ बहुत सोच समझ के उस पर बात भी करनी चाहिए, और उसका जो कोई हल है वो भी तलाश करना चाहिए। कश्मीर के 12 हलकों के तमाम वोटर्स कश्मीरी हैं। इन हलकों के मेंबरान का कश्मीर से ताल्लुक खत्म नहीं किया जा सकता। ये लोग कश्मीर कॉज के लिए अपना घर बार छोड़कर इन इलाकों में आबाद हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर जवाब। बोले, आइनी मामला ठंडे दिल से हल होते हैं, मसले के हल के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। एमल वली का बयान नाकाबिले बर्दाश्त है, गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आपको पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान से मोहब्बत है। एमल वली की अहलियत और मयार का सबको पता है। इंतखाबात में भी अवाम ने एमल वली की जमात को मुस्तरद किया। गैर ज़िम्मेदाराना सियासत और बयानात की वजह से एमल वली अपने सूबे में कौंसलर नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादिक ने नूर खान एयरबेस पर खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात की। मुस्लिम और अरब ममालिक के साथ गजा अमन माहिदे पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी माहिदा करके रियाद से अमरीका पहुंचे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शिरानी में ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर भारतीय प्रॉक्सी फितन खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पंजाब में अकरबा परवरी और सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया, अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से गुफ्तगू, कहा करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है, पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और इसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरका ने वज़ीर आला के अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। मरियम नवाज़ का बुनियादन मरसूस की कामयाबी पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। शाहदरा से रायबंड स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर मनसूबा मंजूर। 40 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक के साथ 1 अरब 77 करोड़ से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। 30 साइट्स की निशानदही मंसूबा 2 साल में बनेगा। मंसूबा PHA मुकम्मल करेगा। पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, वॉकवे, सिटिंग एरियाज बनेंगे। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का रेगुडेक मंसूबे के असरात का जायजा लेने का फैसला। IMF ने रेगुडेक मंसूबे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। IMF वफ्द को रेगुडेक मंसूबे के मैक्रो असरात और फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब में फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। सर्वे टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। सैलाब से 53,985 एकड़ अराजी की निशानदही की गई। मुतासरा 24,246 मकानात का डेटा जमा कर लिया गया। मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गईं। 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात हासिल हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जामिया कराची से डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। रजिस्ट्रार जामिया की अदालत में पेशी, कहा 2 रोज कबल नोटिस मिला, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील की जवाब के लिए मोहलत तक ऑर्डर मुअत्तल करने की इस्तदा। PTI रहनुमा बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और अली नवाज अवान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। बहरा अरब में ताकतवर समुद्री तूफान तश्कील पाने लगा। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बहरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। मगरबी हवाएं भी मुल्क में रंग दिखाने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी। बाजौड़, मलाकंड और स्वात में भी तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। महकमा मौसमियात ने पंजाब और KP में बारिशों की पेशगोई कर दी। स्मोक सीजन के दौरान तलबा के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। पंजाब में खेलों, असम्बलियों और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। स्कूलों को कचरा जलाने से सख्ती से रोक दिया गया। लाहौर की सड़कों पर एंटी स्मोक गन्स इन एक्शन। जेल रोड पर एंटी स्मोक गन्स के जरिए पानी का छिड़काव। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 162 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर ट्रंप जंगे रुकवाते रुकवाते खुद सियासी हलचल में फंस गए। अमरीका में जारी हुकूमती शटडाउन तीसरे रोज में दाखिल हो गया। आज दोपहर फिर वोटिंग होगी। आज भी वोटिंग कामयाब ना रही तो कल दोबारा चौथी बार वोटिंग होगी। हफ्ता एतवार की छुट्टी के बाद शटडाउन पीर में दाखिल हो सकता है। पीर को फिर वोटिंग होगी। ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेटिक अक्सरियती रियासतों के लिए मुख्तलिफ $26 अरब के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। दुनिया का पहला 1406 खरब रुपए का मालिक एलॉन मस्क ने तारीख रकम कर दी। एलॉन मस्क दुनिया के पहले $500 अरब कमाने वाले शख्स बन गए। टेस्ला, स्पेसएक्स और दीगर टेक्नोलॉजी मंसूबों की कामयाबी ने दौलत में ज़बरदस्त इजाफा किया। दुनिया भर के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी। लैरी एल्सन दूसरे, मार्क ज़करबर्ग तीसरे और अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स हैं। बरतानवी तारीख में पहली बार खातून आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन गई। डैम सारा मोलाली आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बनने वाली 106वीं मजहबी रहनुमा हैं। उनकी उम्र 63 साल है। वो 7 साल लंदन के बिशप भी रही। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। कोचेस ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट दिए।
पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। विमेंस वर्ल्ड कप में यकतरफा मुकाबला, इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की 10 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सकी। हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर फिल्म द कारपेंटर सन की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म की कहानी सुपर नेचुरल पावर रखने वाले लड़के पर मबनी है। फिल्म 30 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।